Assalamualaikum friends. Today we are going to complete the part 2 of excretion chapter, and this chapter is belong to the internal structure of kidney, and it is considered as a nephron. So let's get started. तो यहाँ देखिए भाई, ये दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक है, तो और ये एग्जाम में इसकी लेबलिंग जो है वो पूछ के आती है पेपर्स में. तो अगर हम इसमें देखते हैं तो किडनी में हमें नजर आता है द टू मेन पोर्शन. दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स. The one portion is called the cortex and the other portion is called the medulla. So the outer portion is called the cortex, while the inner portion is called medulla, right? The darker portion and the outer portion is called cortex, while the inner one is called medulla. And in medulla, it consists of pyramid-like structure. Medulla consists of pyramid-like structure. These are the pyramid-like structure which is found in the medulla. Okay, this is the one structure, this is the two structure, and nephron. Yes, come to the nephron. Nephron are located between the cortex and medulla. So where it is found? Yes, look at clearly this picture. Here, the nephron started from this place. For example, nephron started at this place from the cortex. Nephron start from this place and it lies into the medulla like this. So this is actually the structure of nephron, which we are going to discuss in detail. All right. So ये cortex हो गया, this is medulla, and this is nephron, which located between the cortex and medulla. Now the fourth one is called renal pelvis. This portion is called renal pelvis. This is, so I'm just writing over there. This portion is called the renal pelvis, and sometimes it was asked in the examination as well that this portion, and most of the time the student confused that what is this point is called. तो इस वाले पॉइंट को हम रीनल पेल्विस कहते हैं, एंड ये जो रीनल पेल्विस है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. उसको हम कहते हैं यूरेटर, एंड यूरेटर कैरी यूरिन विच फॉर्म हेयर. यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है और फिर वो कैरी होके यूरेटर में आती है, फिर वो यूरेटर से इट पास it is stored into the bladder and then it passes out from the urethra. So it is all about the internal structure of kidney. I hope you understand this diagram. These are the cortex, medulla, nephron, renal pelvis, and the ureter. Okay, one more thing which I would like to discuss here in this diagram, the two blood vessels. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो blood vessels को देखते हैं कि what are these two blood vessels. तो एक blood vessels का नाम है renal artery और एक blood vessels का नाम है renal vein. What is the difference between these? ये आपको दिख रहा है जैसे स्क्रीन पर कि renal artery is the artery which carry blood and blood enter into the kidney. राइट, ब्लड एंटर हो रहा है किडनी के अंदर और प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वी विल सी दिस थिंग्स इन नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो रीनल आर्टरी एक जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके किडनी की तरफ जा रही है. फिर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आफ्टर दिस रीनल वेन के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो जाएगा कहाँ पे, इट गोज टू द हार्ट. राइट, सारे प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर यूरिन फॉर्मेशन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द रीनल वेन. सो ये सारा था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. दिस इज द होल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कंसिस्ट ऑफ cortex, medulla. Cortex is the outer portion, medulla is the inner portion. Then the nephron, which arise from the cortex and lies into the medulla. Then the renal pelvis here, ये renal pelvis है, और renal pelvis के बाद ये दो associated
जो है ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, then this is called the renal pelvis. So this is done. Okay, now what are the associated blood vessels we discussed in the previous uh, slide? The renal artery and the renal vein. Okay, this is another important diagram. Sometime इस तरह से साइड व्यू आता है किडनी का और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि which one is the renal artery and which one is the renal vein. तो अच्छा, पहले हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कि रीनल आर्टरी में क्या होता है और रीनल वेन में क्या होता है। फिर हम मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। सो स्टे हियर। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग यूरिया, excess water and heat to the kidney, right? Yani it carry oxygenated blood. Renal vein carry deoxygenated blood, carry urea, excess water, heat have been removed from the kidney. अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया। रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, एक्सेस वाटर के साथ आएगी, यूरिया के साथ आएगी, और वन मोर थिंग, ग्लूकोज और सॉल्ट वगैरह भी इसके साथ होंगे। ठीक है, ये सब चीजें रीनल आर्टरी में मौजूद होगा। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि एक इंपॉर्टेंट बात कि जिसको बच्चे जो है वो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि विच वन इज द रीनल आर्टरी एंड विच वन इज द रीनल वेन। तो जी, अब अगर एग्जाम में आता है कि मार्क करें रीनल आर्टरी और रीनल वेन को, सो आप किस चीज की पे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको वहां पर एरो की डायरेक्शन पे फोकस करना होगा। अगर एरो की डायरेक्शन टूवर्ड्स द किडनी जा रही है, ठीक है, और एक एरो की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द किडनी होगी, तो अगर टूवर्ड्स द किडनी जा रही है तो वो आपकी कहलाएगी रीनल आर्टरी, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लेके जा रही है प्रोसेसिंग के लिए, और ये सारा प्रोसेसिंग होगा यहाँ नेफ्रॉन में। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यूरिन तो यूरेटर के थ्रू बाहर आ जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा, और यूरिनरी ये जो रीनल वेन है, इससे ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोसेसिंग के बाद किडनी से बाहर चले जाएगा। तो सबसे अहम पहचान है, एरो की डायरेक्शन को आपने फोकस करना है। इस तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपकी मैंने बताई आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो ये था दो इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जिसके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी दफा पूछे जाते हैं। तो इन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, दिस इज an exercise for you to solve this diagram. Actually, this is the unlabeled diagram, and I hope you understand this diagram. And pause कीजिए 2 मिनट के लिए वीडियो को और इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम यहाँ देखते हैं ये वाली चीज। ओके, जैसे ये दो चीजें, इसमें हम एक और चीजों का एडिशन कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो इसको भी ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए पार्ट्स, और इसको हम और ऐड कर देते हैं, ये ई और ये एफ। अब इसको आप ट्राई कीजिएगा कि सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपके सामने था। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मैंने आपसे बोला कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो आपका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन ही आपका इट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। सही है, हम नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये देखें, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी में जो सारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा यूरिन फॉर्मेशन का,
वो सिर्फ नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है। किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन अ किडनी। ओके, सो अब हम इन सब के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था, कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और मेड्यूला तक जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच इज दिस पोर्शन एंड विच इज दिस पोर्शन, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन आपको नेफ्रॉन का नजर आएगा और कुछ पोर्शन जो है वो मेड्यूला में नजर आएगा। अब कौन सा पोर्शन है जो कॉर्टेक्स में नजर आता है, वो देखते हैं हम यहाँ। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमरुलस। ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमरुलस, ठीक है, ये लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्लोमरुलस। अच्छा, ये जो फाइन ग्लोमरुलस क्या है, इट्स एक्चुअली द फाइन फाइन ब्रांचेस एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो एक आर्ट्रियोल है आपके सामने, इसका नाम, अब ये कहाँ से आ गई, हमने तो अभी पीछे पढ़ा था रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब इस डायग्राम में तो हमारे पास एफरेंट और इफरेंट का वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये देखिए, जो रीनल आर्टरी थी हमारी, रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी आपको पता था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब रीनल आर्टरी जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो आर्टरियोल के अंदर। एक का नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल और एक है आपकी इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो इस तरह से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको दोनों नाम पता चल गए कि एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल एक्चुअली रीनल आर्टरी के स्प्लिट होने से बनी है। अच्छा, तो अब एक ए से आ रही है और एक ई से आ रही है। अच्छा, अब अगर हम ए वाले पे आप अभी गौर करें, जो एफरेंट आर्टियोल है, यही वो आर्टियोल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी विद ऑल ऑक्सीजन एंड यूरिया। अब ये एफरेंट आर्टियोल जो है वो यहाँ पर जाके एक बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, जिसको हम नाम दे देंगे ग्लोमरुलस का, ठीक है। अब ये आपने पार्ट याद रखना है बाय हार्ट अच्छी तरह से, ग्लोमरुलस। अब ये ग्लोमरुलस किसके अंदर इनक्लोज्ड है, आपको एक बोल लाइक प्याले की तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है, इसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, अगर कलेक्टिवली रीनल कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैलेफिजन कॉर्पसेस। और हम अगर सेपरेट बोलेंगे तो जो बंच लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स या रीनल कैर्पसल्स। और जो आपका बंच लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको रीनल कैप्सूल्स कहते हैं। अच्छा, इसके फौरी बाद आप देखते हैं जहां पर ये बोमिन कैप्सूल फिनिश हो रहा है, वहीं से एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है, बन रहा है। उस क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पीसीटी, राइट। अब ये चीज आगे जाके एक लूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का नाम दे देते हैं। फिर ये लूप ऑफ हेनले आगे जाके दोबारा से ऐसे क्वाइल फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इस क्वाइल फॉर्म को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं डीसीटी, ठीक है। तो हमने बात स्टार्ट की थी ग्लोमेरुलस से, फर्स्ट पार्ट था आपके पास ग्लोमेरुलस। अच्छा, फिर लास्ट पार्ट भी तो हम देख लें, लास्ट पार्ट का नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये जो नाम है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट दिया हुआ है। तो देखिए भाई, अब हम जल्दी से इसको समराइज करते हैं कि इनके पार्ट क्या कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का नाम था आपके पास ग्लोमेरुलस, जो कि आपका इनक्लोज था बोमिन कैप्सूल के अंदर, ये आपने नाम याद रख लिया। दूसरा जो हमारा क्वाइल शेप स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं पीसीटी। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले बन रहा है, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी बन रहा है, और डीसीटी के बाद जो स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपने ये 5 पार्ट्स को बाय हार्ट याद रख लिया, ठीक है। अब बात इतनी सी नहीं है कि सिर्फ आपने पार्ट्स को ना याद रखना है, अब आपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर हम चलते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या है, ये सब अपने अपने क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि जिससे यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। सो आपके पास ये नाम आ गए, ठीक है। आपके पास नाम है जो अब आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे और लिखते जाएंगे अपने नोटबुक में। नेफ्रॉन पार्ट्स, राइट। तो नेफ्रॉन पार्ट्स हमने कौन कौन सा देखा, हमने एक वर्ड देखा था
ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस आपका इंक्लोज्ड होता है वोमेन कैप्सूल में, ठीक है। और इसको ऐसे समझने की जैसे मैगी है और मैगी एक प्याले के अंदर है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस आपका मैगी हो गया और बोमन कैप्सूल जो हो गया वो आपका एक बोल हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट है आपका पीसीटी, जिसके मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इसके बाद हमने पढ़ा था, जी साथ साथ आप लोग भी अपने पास लिखते जाइए, इसको नोट करते जाइए। लूप ऑफ हेनले हो गया, और फिर उसके बाद था हमारे पास डीसीटी, एंड देन लास्ट जो था वो हमारे पास था कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से आपने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कर लेना है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब आपने पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन देख लिया है, अब हम चलते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फंक्शन जो है वो हम देखेंगे सबसे पहले ग्लोमेरुलस से, ठीक है। हम सबसे पहले ग्लोमेरुलस का फंक्शन देखेंगे कि ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोमर, अच्छा जी। तो ये आपके सामने आ गई यूरिन फॉर्मेशन, कि किस तरह से किडनी के अंदर जो है वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कलेक्टिवली मिलकर वर्क करेंगे और फाइनली यूरिन की फॉर्मेशन को पॉसिबल बनाएंगे। तो ये एक कंप्लीट नोट्स है आपके सामने कि एक एवरेज पर्सन जो होता है वो 1 to 2 लीटर जो होता है वो यूरिन डेली फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब उस यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे पॉसिबल हुई, तो उसमें आप ये 3 स्टेप्स को याद रखना है। और ये 3 स्टेप को मैं आपको बहुत सिंपल वे में करके लेकर आ रही हूँ। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 वेज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और एक है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको अगर हम इस तरह से याद रखने की कोशिश करें, एफ आर एंड एस, लीजिए अब हो गया ये बहुत सिंपल आपके लिए। एफ स्टैंड फॉर फिल्ट्रेशन, आर स्टैंड फॉर रीएब्जॉर्प्शन एंड एच स्टैंड फॉर सिक्रीशन। अब आपको एकदम से ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई फिल्ट्रेशन हो रहा है एक प्रोसेस जो है वो यूरिन के फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन का होगा, एक प्रोसेस का नाम है सिक्रीशन। अब ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो आपका हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन आपका होगा पीसीटी के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो आपका होगा डीसीटी के अंदर। तो आपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, आपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास दूसरा वर्ड क्या हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया, और थर्ड चीज हो गई आपके पास एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब आपके पास हम वन बाय वन इस स्टेप को देखते जाएंगे। ये देखिए, अब आपके पास है पूरा डिटेल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि अक्सर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन देखिए नाम से ही पता चल रहा है ग्लोमर कि ये ग्लोमेरुलस के अंदर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो किडनी का जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था ग्लोमेरुलस विद बोमन कैप्सूल। तो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यानी कि ये सारा प्रोसेस होने वाला है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड एंटर हो रहा था रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ब्लड एंटर हुआ किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू, और आगे जाके रीनल आर्टरी आपकी स्प्लिट हुई थी एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। एफरेंट आर्टरियोल का प्रेशर जो होता है वो डायमीटर भी तो उसका ज्यादा होता है इफरेंट से, और वो हाई प्रेशर के साथ, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपने एग्जाम में इसको हाईलाइट करना है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है कि एफरेंट आर्टरियोल के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जितना ज्यादा जब प्रेशर हाई होता है तो वो हाई प्रेशर के साथ जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। अब एफरिन आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट जर्नी है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और वो कहाँ जर्नी इसकी स्टार्ट होगी, ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहां पर जो प्रोसेस होगा उसका नाम होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें इस पे हमने क्या पढ़ा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, और वो हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। एफरेंट आर्ट्रियोले जो कि हाई प्रेशर के साथ ब्लड को लेकर एंटर हुई है किडनी के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड से आपको और क्लियर हो जाएगी कि जी देखिए, अब इसमें एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर दी हुई है कि आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले रीनल आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर हुआ। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें लेकर आ रही है, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया। ये सब हाई प्रेशर के साथ जो है वो ग्लोमेरुलस में एंटर होंगी, और और फिर यहाँ पर आके कुछ चीजें स्टोर हो जाएंगी वोमेन कैप्सूल में। जो कुछ चीजें जो फिल्टर होकर आएंगी और वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी, तो उसको हम नाम देंगे GF, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें आ गई हैं, आपका वाटर आ गया है, सॉल्ट आ गया है, ग्लूकोज आ गया है और यूरिया आ गया है। जो लार्ज मॉलिक्यूल थे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल लार्ज होते हैं, ठीक है, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो आपके पास नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत बारीक होती है और यहाँ से वो पास नहीं हो सकेंगे। अच्छा, अमीनो एसिड पास हो जाएंगे। अब वो यहाँ पर आ गए, ये वाली जगह क्या आपकी बोमन कैप्सूल है, जहाँ पर आके ब्लड GF जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी पूरी चीज थी, हमने क्या पढ़ा, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर बात। और ये बात याद रखिएगा, ये सब कुछ हुआ है हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में हुआ है ये चीजें। ठीक है, अब उसके बाद ये सारा आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड, अब हम क्या देखेंगे जी, अब सेकंड हम ये देखेंगे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद अब हमारा F कंप्लीट हो गया है। अब F कंप्लीट होने के बाद अब हमने देखना है कि भाई फिल्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब फिल्ट्रेशन के बाद हमारी जो टर्न आती है वो PCT और DCT में कुछ काम होने वाले हैं। तो अब PCT में क्या काम होने वाला है और DCT में क्या काम होने वाला है, तो वो इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली थी, कि उसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। नंबर वन स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि फिल्ट्रेशन था। ठीक है, फिल्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि ग्लोमेरुलस में कंप्लीट हुआ था। सेकंड में हम देखें, सेकंड में आता है एक प्रोसेस जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखें, अब जो फिल्ट्रेट बाहर आया उसमें ग्लूकोज भी था, उसमें अमाइनो एसिड्स भी थे, उसमें यूरिया भी था। ठीक है, अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स को हम पूरा का पूरा एज इट इज यूरिन में जाने नहीं देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमारे ब्लड को नीड है। तो उसको हमें क्या करवाना है, उसको हमें किसी तरह से एब्जॉर्ब करवाना है किडनी में। तो इसीलिए एक प्रोसेस होगा, उसका नाम होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके इस स्टेप पे, इस जगह पे, और इसको हम बोलते हैं PCT। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेयर डज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो वो होता है PCT में। तो PCT के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो दो कीवर्ड आपने यहाँ पे याद रख लिए, PCT का वर्ड आपने याद रख लिया कि यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अच्छा, अब एक्सेस ग्लूकोज वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। अब उसके बाद जो है कुछ अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज था और सॉल्ट वगैरह वो लूप ऑफ हैंडले की तरफ जाएंगे। अब लूप ऑफ हैंडले भी मजीद कुछ एब्जॉर्प्शन करेगा, तो यहाँ पर वो सॉल्ट को, जो एक्सेस सॉल्ट थे उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि यूरिन में कम से कम सॉल्ट जाए। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और डिफ्यूजन के थ्रू एक्सेस सॉल्ट जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगी सॉल्ट्स की, और यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये तीन टर्म आपको याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ये आपने इग्नोर नहीं करना। अब चलते चलते जब हम यहाँ गए आगे, तो यहाँ पर अब हमें दिखा DCT।
ठीक है, डीसीटी। डीसीटी के अंदर क्या होता है जी? अब हमने पढ़ लिया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर डीसीटी में होता है सिक्रीशन। जी, सिक्रीशन क्या चीज है? अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ड्रग वगैरह लिए या कोई एंटीबायोटिक लिए, तो उसका तो हमारे ब्लड में कोई काम नहीं है ना, तो वो ब्लड में मौजूद है अभी, तो वो ब्लड जो है उसको सिक्रीट करके पीसीटी डीसीटी को दे देगा। सही है। तो जो ड्रग होगी या जो एंटीबायोटिक वगैरह है, वो ब्लड अपने पास नहीं रखेगा, वो डीसीटी को दे देगा। तो डीसीटी के अंदर इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्रीशन का प्रोसेस होता है। अब आगे जा रहा है, अब आगे क्या चीज जा रही है? आगे जो चीज जा रही है उसके अंदर ये ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक है, कुछ सॉल्ट हैं, बाकी यूरिया है, और कुछ वाटर है। ये सब चीजें मिलकर फाइनली क्या बना देंगी? जी, बिल्कुल सही। ये सब चीजें मिलकर आगे बना देंगी यूरिन। ठीक है। अब यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो है जब वो आ जाएगा तो हम अ, ये यूरिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लॉट ऑफ यूरिया मौजूद है। अब यूरिन यहाँ आया, फिर यूरिन वहां से जाएगा यूरेटर में, और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी आपकी नेफ्रॉन की वर्किंग। और इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ नंबर 1 स्टेप में। फिर किस तरह से नंबर 2 स्टेप पे क्या हुआ हमारा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जो कि पीसीटी में हुआ। फिर लूप ऑफ हैनले ने मजीद सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब किया। फिर डीसीटी के अंदर सिक्रीशन हुआ, और फिर फाइनली लास्ट में यूरिन की फॉर्मेशन हुई, और वो चीज यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो गया। तो आई होप ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अब आपने लास्ट में ये जरूर देखना है आपने, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी, लास्ट में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज देखनी है? वो ये चीज है। ठीक है, ये पूरा एक टेबल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि आप जब ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लें, तो उसके बाद यहाँ पर आप उसको समरी, जो आपको समरी यहाँ पे पूरी नजर आ रही है, आप उसको अच्छी तरह से एक दफा रिकॉल कर लें। तो ये आपके सामने पूरा सारे पार्ट्स विद फंक्शन के साथ बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हुए हैं। इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जी, आई होप कि आपको जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगी। अच्छा, ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है, ये नॉर्मल यूरिन की परसेंटेजेस आपके सामने लिखी हुई है। ये जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें ये अमाउंट होना चाहिए यूरिन का, मतलब यूरिया का सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए एक नॉर्मल यूरिन के अंदर। और अगर कोई डायबिटिक पर्सन पर्सन है तो उसमें ये वैरी कर सकता है। तो ये यूरिन की कॉम्पोजिशन आपके पास होगी सामने। अच्छा भाई, देन ओके। अब यहाँ पर मैं अपने लेक्चर का वाइंड अप करती हूँ, और ये आपके लिए मैं ऐसा होमवर्क समझ लीजिए कि ये आपने इसको इस टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे आपके सामने एक ये एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आपसे लेबलिंग पूछी गई है, और ये इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखें, जैसे मैं आप आपको ये चीज कवर करके बता रही हूँ, इसको आपने खुद स्टडी करना है और इसको कंप्लीट करना है मेरी ऊपर वाली स्लाइड से जाके। अच्छा, जैसे ये ए है, ए का नाम क्या होगा? ए जो है वो आपका है ग्लोमेरुलस। ठीक है। बी जो है, बी है आपका वोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये आपने, अगर आप यहाँ लेबलिंग सही करेंगे तो फिर यहाँ फंक्शन सही लिखेंगे, तो इसीलिए इसकी 8 मार्क्स है, 1 मार्क लेबलिंग का और 1 मार्क फंक्शन का। ओके।
अब सी पार्ट क्या है? सी पार्ट आपका पीसीटी कहलाता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और डी पार्ट आपका क्या कहलाता है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इन सबको आपने लेबल कर लिया। अब लास्ट काम क्या है? इसको आपने इसके फंक्शन लिख